आज की इस वीडियो में वी विल डिस्कस सम वेरी बेसिक एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सर्कल। तो सर्कल को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल, हाउ कैन वी डिफाइन अ सर्कल। सो सर्कल इज द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट P in a plane which is always equidistant from some fixed point O. So first of all we explain it. मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है लोकस। लोकस क्या होता है? दैट मीन्स सेट ऑफ पॉइंट्स। तो एक सेट ऑफ पॉइंट्स है और ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर, दीज पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो मिसाल के तौर पे दिस इज दैट लोकस ऑफ द पॉइंट्स। ये आप देख सकते हैं देयर आर मैनी पॉइंट्स और ये ऐसे इस शक्ल में लोकेटेड हैं and they are equidistant from a fixed point, this point which is in the center, and this is the point which is in the center, and all these points around they are equidistant from this fixed point, and this is called a circle. So all these points are at a fixed distance from a fixed point. So the point which we are having in the center, it is known as center of the circle, जिसको हमने O का नाम दिया. For example, this is the point O. This is the point O, and all the points which are around it, they are on the circumference of the circle, and this fixed point is known as center of the circle. और ये तमाम जो points हैं ये इससे fixed distance पे होते हैं, यानी कि this distance is equal to this distance, and this is equal to this distance, and this equals this, and this equals this. तो जितने भी points हैं तो जितने भी points यहाँ पे मौजूद हैं, in सब का distance from this fixed point which is the center of the circle, this is equal, and this fixed distance is known as radius of the circle. ठीक है जी। तो यानी कि सेंटर से लेकर दायरे के सर्कमफ्रेंस के ऊपर मौजूद किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड रेडियस, एंड दिस इज डिनोटेड विद स्मॉल r, एंड टू रेडियस मेक्स डायमीटर। यानी अगर हम दो रेडियस को ज्वाइन कर लें तो इट मेक्स अ डायमीटर ऑफ द सर्कल. So this is first of all definition of the circle, that this is locus of a moving point P in a plane which is always equidistant from a fixed point, that is called center of the circle. Now we move towards the next important term or concept, that is radius of the circle. So radius of the circle or the radial segment of a circle is a line segment determined by the center and a point on the circle. Radial segment is a line segment determined by the center and a point on the circle. So दायरे के जो सेंटर होगा, सेंटर से लेके दायरे की ऊपर जो उसकी बाउंड्री है, सर्कमफ्रेंस है, वहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, that is called radius of the circle. For example, we are having a circle. ये हमारे पास सर्कल है, and this is the center of the circle. Now any line segment from the center of the circle to any point on the boundary of the circle, this line segment is known as radial segment, yes, जिसको आप radius भी कहते हैं. So this is the, for example, if this is the point O which is the center, and this is the point P, this is on the circumference of the circle, so OP will be the radial segment. Similarly, if this is the point R, for example, so OR will be the radial segment. Similarly, if this is the point S, this will become another radial segment. So that's how we can have number of radial segments in a circle, and this is the distance from the center of the circle to any point on the circumference of the circle, and makes the radius of the circle. और ये बात इंपॉर्टेंट है कि जितने भी रेडियस होंगे तमाम की लेंथ इक्वल रहती है। सर्कल के अंदर तमाम रेडियस दे आर ऑफ इक्वल लेंथ। अगर किसी सर्कल की रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो तमाम जो उसके मौजूद होंगे उसके अंदर जितने भी रेडियल सेगमेंट्स हैं, जितने भी उसके रेडियस हैं, रेडियाई हैं, उन तमाम की जो लेंथ है वो इट ऑलवेज विल बी 5 सेंटीमीटर. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड डायामीटर इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ द रेडियस. अगर आपका रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो आपका जो डायामीटर होगा इट शुड बी 10 सेंटीमीटर. नाउ मूविंग अहेड, वी आर हैविंग अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. दिस इज सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. How can we define the circumference of a circle? Circumference of a circle is basically the length of the circle. यानी अगर आपके पास एक सर्कल है and this is the circle, for example, if we open it up, अगर हम इसको खोल लें तो ये एक धागे की शक्ल में आ सकता है, एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल में आ जाएगा like this. ठीक है जी.
तो अगर हम इसकी लेंथ को मेजर करते हैं तो लेंथ ऑफ द सर्कल विल बी बेसिकली द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है जी। एंड दिस सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, जिसको हम विद द फार्मूला फाइंड कर सकते हैं, दैट फार्मूला इज 2πr, यानी कि रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है, पाई इज कांस्टेंट एंड यू नो दैट द रेडियस इज द ओनली वैल्यू जिसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। अगर आपके पास सर्कल का रेडियस ज़्यादा है, यू विल बी हैविंग अ बिगर सर्कल एंड यू विल हैविंग द मोर लेंथ ऑफ द सर्कमफ्रेंस। और अगर आपके पास जो रेडियस है वो उसकी वैल्यू, उसकी लेंथ कम आ रही है, दिस इज द रेडियस, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू any point on the circumference OP. So this is the radius of the circle, and length of the circle certainly makes and determines that what should be the length of the circumference of a circle. जितनी आपके पास रेडियस की लंबाई ज़्यादा होगी, आपके पास सर्कमफ्रेंस भी उतना ही बड़ा होगा। ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है कि जो बाकी ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, जैसे आपके पास स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, वहाँ पर टर्म सर्कमफ्रेंस इस्तेमाल नहीं होती, वहाँ पे आप टर्म यूज़ करते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, ठीक है। तमाम बाउंड्रीज की लेंथ होती है, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ दैट ज्योमेट्रिकल फिगर, चाहे वो आपके पास ऑक्टागोन हो, चाहे आपके पास हेक्सागोन हो, चाहे आपके पास रेक्टेंगल है या ट्राइंगल है। लेकिन सर्कल केस में वी यूज द टर्म सर्कमफ्रेंस, एंड सर्कमफ्रेंस मीन्स लेंथ ऑफ द सर्कल। अगर आप सर्कल को ओपन कर लें तो इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, और ये आपके पास सर्कल की लेंथ होती है बेसिकली, और इसको हम फार्मूला से फाइंड करते हैं, एंड दैट फार्मूला इज 2πr, यानी कि circumference equals 2πr. This is the formula to find out the circumference of a circle. Next very important term is arc of a circle. Arc of a circle is basically, it's a portion of the circumference of a circle. For example, if you are having a circle, this is a circle we are having, so any portion of its circumference will be known as arc. For example, this is the center, and this is the center O, and here is a point A, and here we are having a point, B. So this portion on the circumference of the circle, this will be known as arc. So AB is an arc. तो यहाँ पे ये जो आपके पास एक AB हमने यहाँ पे मार्क किया ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, दिस इज कॉल्ड दी आर्क ऑफ द सर्कल. अगर हम इसको लेबल कर दें लाइक दिस, इफ दिस इज D, सो वी विल से दैट ADB इज एन आर्क. सो तो इसको हम शो ऐसे करेंगे दैट ADB इट्स एन आर्क, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ आर्क. सिमिलरली अगर हम इसको देखें यहाँ से लें दैट ACB, ये भी एक आर्क बन रही है ना आपके पास. अगर आप ACB के लिहाज से देखते हैं, सो दिस इज आल्सो एन आर्क, एंड दिस इज कॉल्ड द मेजर आर्क. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सर्कमफ्रेंस का एरिया कवर हो रहा है. सो ACB इज आल्सो एन आर्क, एंड दिस इज कॉल्ड मेजर आर्क. But on the other side, that ADB, this is called the minor arc, because this is smaller arc, and this is covering the small portion of the circumference of a circle. तो ADB को हम नाम देंगे minor arc का, जबकि ACB जो होगा हमारे पास, this will be named as major arc of the circle. So basically what is an arc? This is the portion of the circumference of the circle. Circumference के अगर हम एक हिस्सा काट लें, जैसे अगर हम यहाँ से यहाँ तक इसको हम काट लेते हैं, A से B तक का portion, so this portion will be known as arc of the circle. Next very important term is chord of the circle. If we are having a circle like this, और इस सर्कल के ऊपर circle, and here we have a line segment on it, and here we have a line segment like this. Okay, this is point A, and here we have the point B. This is the point B, and if we name, and this is the point K in the center. So this point, this line segment AKB becomes the chord of the circle. Basically ये क्या हो रहा है कि दो जो आपके points हैं, one point here on this point on the circumference, and another here. So these two points are being joined. Okay, so this is the chord of the circle. Similarly, this is the center, और सेंटर के अलावा जितने भी दो पॉइंट्स आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड. सिमिलरली वी कैन कम वर्टिकली डाउनवर्ड, दिस इज कॉल्ड. ये हो सकता है आपके पास कॉर्ड.
तो एक सर्कल के अंदर देयर कैन बी नंबर ऑफ कॉर्ड्स, क्लियर, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट दीज लाइन्स शुड नॉट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. अगर ये सेंटर से गुजर जाएगा, this chord will become a very important and very special case, and that is called the diameter of the circle. अगर हम इसको यहाँ से पास कराते हैं, for example it starts from here and it is passing through the center of the circle like this, we say this is the point P and this is the point Q and this is the point O. So POQ will not be the chord of the circle, rather it should be the diameter of the circle. So diameter is a special case in fact. तो डायमीटर आपके पास बेसिकली एक स्पेशल केस का कॉर्ड होता है. इट्स आल्सो कॉर्ड बेसिकली, लेकिन दिस कॉर्ड इज पासिंग थ्रू द सेंटर, सो वी विल नेम इट एज डायमीटर ऑफ द सर्कल. तो लेकिन जो कॉर्ड होगा आपके पास, कॉर्ड विल नॉट पास थ्रू द सेंटर. ये उसकी उर्दू में इसको वतर कहा जाता है, और वतर जो होगा या कॉर्ड होगा, इट विल नॉट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज सेगमेंट ऑफ अ सर्कल. सो व्हाट इज सेगमेंट? बेसिकली दिस इज अ सर्कल वी आर हैविंग, and in this circle we are going to have, this is the center of the circle and this is a chord. So what is the segment of a circle? Basically जो यहाँ पे आपको एरिया बाउंड नज़र आ रहा है, this is the bounded area. This portion of a circle is known as segment of a circle. For example, this is the A and this is point K and this is B. AKB is a chord of the circle. ये chord है. और आपके पास जो AB है, this is arc of the circle. तो एक आर्क और एक chord के बीच में जो आपके पास एरिया होगा, this is called segment of a circle. So basically आपके पास segment क्या होता है? Segment is basically portion of a circle bounded by an arc and the corresponding chord. So this is the arc AB and this is the chord AKB. इनके बीच में जो आपके पास ये एरिया बाउंड हुआ है, this is called segment of a circle. This can also be major or minor. जैसे आपके पास अभी ये जो हमारे पास सेगमेंट बन रहा है, this is called the minor segment. ये आपके पास minor segment है, और इसके जो corresponding दूसरा आपके पास बन रहा है segment, that is called the major segment. So this segment should be the major one because this occupies the major area. Clear? So this is the major segment and this one is the minor segment. Now the last very important term is sector of the circle. This is the circle here we are having with the center O. So center is O. Here we can have the two radii. For example, this is first radius and this is the second radius. We name it as OA and this is OB. So in between these two radii and this arc, this is the area bounded and this area bounded is known as सेक्टर ऑफ द सर्कल. ये आपने याद रखना है कि सेक्टर जो होगा, इट इज़ बिटवीन द टू रेडियाई एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग आर्क. ये आपकी आर्क है, और ए बी, या इसको आप कोई और नाम भी बीच में दे सकते हैं, लाइक ACB. दिस इज द आर्क एंड OA एंड OB आर द रिस्पेक्टिव रेडियाई. तो दो रेडियाई और आर्क के बीच में जो आपके पास एरिया बाउंड होता है, दिस इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल. क्योंकि ये आपके पास स्मॉलर एरिया है, तो वी विल नेम इट एज माइनर सेक्टर. ये आपके पास माइनर सेक्टर है, और इसी के जो करस्पॉन्डिंग आपके पास सेक्टर बनेगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, दिस ऑक्युपाइज द मेजर एरिया, सो वी विल नेम इट एज मेजर सेक्टर बिकॉज इसके अंदर मेजर आर्क इन्वॉल्व है. अगर आप चेक करें यहाँ से, आपके पास अगर हम इसको यहाँ से पॉइंट D कह दें, सो दिस ADB, दिस मेक्स अ मेजर आर्क, और मेजर आर्क की वजह से, और ये जो OA और OB सेक्टर्स हैं, दो रेडियाई हैं आपके पास, दिस मेक्स द मेजर सेक्टर ऑफ द सर्कल. और जो आपके पास ACB आर्क है, और इसके अंदर दो रेडियाई OA एंड OB एंड दिस इज द एरिया बाउंडेड, इसको आप कहेंगे माइनर सेक्टर बिकॉज दिस इज बिटवीन दी माइनर आर्क ऑफ द सेक्टर सर्कल. तो माइनर आर्क होगी तो माइनर आपके पास सेक्टर बनेगा, मेजर आर्क होगी तो इट विल मेक द मेजर सेक्टर ऑफ द सर्कल. होपफुली आज की जो वीडियोस में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस की गई हैं, ये आपको सर्कल के कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करेंगी.